Good afternoon and welcome everyone to this class on daily editorials with me, Jatin Verma. So in today's editorial analysis, we are going to deal with first of all this editorial. The Keen-Betwa project needs to be redesigned. And as an add-on information, we will be sharing the compilation of 10 to 15 most important editorials of the week on the Telegram channel itself. So you can, if you are not able to be regular with it, if you are missing out on the editorials, you'd be able to find the compilation, right? So Keen-Betwa project needs to be redesigned. Prime Minister was this consignatory to the Keen-Betwa project in Madhya Pradesh. Keen-Betwa river linking project कहाँ पे? मध्य प्रदेश में. When it comes to water scarcity, the most plausible but impractical, right, solution that comes to mind is रिवर वाटर इंटरलिंकिंग. जब पानी की बात आती है, पानी की किल्लत की बात आती है, जो पहली बात माइंड में आती है वो ये आती है कि रिवर, इतनी सारी रिवर्स हैं इंडिया की, बट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू, most of them fall into Bay of Bengal, right? They empty themselves into Bay of Bengal and we are left with nothing. So India is one of the very few countries which has not been able to tap these downstream rivers. हमारा पानी वेस्ट चला जाता है, राइट? कोस्टल कंट्री होने के नाते हमारे पास राइट्स हैं कि हम बे ऑफ बंगाल का जो पानी है, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, उसे हम टैप कर सकते हैं, बट हमने किया नहीं आज तक. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने for the first time he came up with the idea of river water interlinking. Now the BJP government is in power. We have seen fructification of this river water interlinking which was proposed in year 2002. Fructification has happened in the form of Sardar Sarovar Dam. Now the other one is Keen-Betwa. Okay, Keen-Betwa river interlinking is in a very different difficult terrain problem. Okay, the project is in the central plateau and the hills region of agroclimatic regions of India. Agroclimatic regions में land को acquire करना एक बहुत बड़ी problem हो जाती है. We all know that. Agroclimatic regions are well suited for agriculture. Acquisition of land which is going to submerge in the dam being created, in the interlink being created, right? So that is going to cause resistance from the farmers. Keen-Betwa linking project is the river interlinking project that aims to transfer surplus water from the Keen river in Madhya Pradesh to Betwa river in UP, and this will irrigate 3,64,000 hectares in the drought prone Bundelkhand region spread across the districts of two states, mainly Jhansi, Banda, Lalitpur and Mahoba districts of UP, and Tikamgarh, Panna and Chhatarpur districts of Madhya Pradesh. Panna and Chhatarpur districts of Madhya Pradesh. Central government has proposed 90-10 funding pattern for Keen-Betwa interlinking project, where 90% of the total estimated cost is to be borne by the center. The project involves building this dam, Dhaudhan Dam, and कहाँ पे बन रहा है Dhaudhan Dam, ये पूछा जा सकता है. Dhaudhan Dam is going to be constructed on this river interlink. Besides irrigation purpose, the project also aims to provide 49 million cubic meters for drinking water supply in the region. We all know about this region: Jhansi, Banda region, Lalitpur and Mahoba districts of UP, and Tikamgarh, Panna and Chhatarpur districts of Madhya Pradesh. Okay, the cost of the project is estimated to be around rupees 18,000 crore, but it is mired in several controversies such as disagreement between the states on the sharing of water and environmental obstructions. Disagreement, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? स्टेट्स अग्री नहीं करती. पहला, स्टेट्स अग्री कर गई तो फार्मर्स जिनकी लैंड एक्वायर करी जाएगी वो अग्री नहीं करते. तीसरा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्सेट्रा की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? नाउ the project methodology of interlinking rivers demands the agroclimatic characteristics to be taken into account. तो इसमें क्या चाहिए? Agroclimatic factors need to be taken into account. So this is there. Now the feasibility document of the project lists these problems, but they were ignored in the engineering design. Feasibility document जो feasibility study करी गई वो इसको it takes that into account. 44% of the soil basin in the link are plateau soils
another 10% are hill ridges and dissected flood plains. तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए जो हमारा प्लेटू सॉइल्स हैं वो फर्टाइल प्लेन बन जाता है. अब उस पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया जा रहा है. अब फार्मर्स की इनकम के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, उसको कैसे क्वेश्चन किया जाए. डॉक्यूमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन मेक दिस क्लियर. द इंजीनियरिंग डिजाइन इग्नोर्स इट. द अपर बेटवा सब बेसिन ate more than 2/5 of the cropping pattern. It contains more than 2/5 of the cropping pattern is jowar. Okay, upper Betwa sub basin has got more than 2/5 of the cropping pattern that is dedicated to jowar, fodder and wheat. Now only 1% or so is paddy, but the project is designed to give 48% irrigation for paddy. तो प्रोजेक्ट में क्या है, मिस प्रायोरिटाइजेशन है. जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो जोवार, फॉडर और वीट के लिए है, विच इज लेस वाटर इंटेंसिव, बट द प्रोजेक्ट इज allocating 48% irrigation facility for paddy. In some soils, water delivery for paddy can cause havoc, क्योंकि plateau soils को water की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, right? So all these things are there. अब यहाँ पे इंजीनियरिंग डिज़ाइन इस बात को मिस करता है. शायद एग्रीकल्चरिस्ट जो इस पैनल में रहे होंगे, जिन्होंने ये कीन बेटवा प्रोजेक्ट बनाया होगा, उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर इस रीजन को वाटर सप्लाई ज़्यादा मिल जाती है तो शायद पैडी कल्टीवेशन यहाँ पे पॉसिबल हो पाए. इसी के चलते शायद 48% इरिगेशन फैसिलिटी दैट विल बी क्रिएटेड अंडर दिस रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हैज बीन डेडिकेटेड टू पैडी कल्टीवेशन. अदरवाइज देयर इज नो रीजन, राइट? So otherwise there is no reason कि ये mismatch हो दोनों चीज़ों के बीच में. Now the Orcha Valley where the Betwa would end is not a paddy producing region. Orcha Valley जो है जहाँ पे Betwa end होगी वो paddy producing region नहीं है. Nor is the Betwa area to be irrigated by Keene Betwa with surplus waters from the Keene River. Okay, Orcha Valley में where the Betwa would end is not a paddy producing region. All right. Now, interlinking of the water issues by ये छोड़ दो, ठीक है. Serial number issues with the interlinking of all major rivers cost 5,60,000 crores. Ecological cost, fisheries, flora, tuna, wetlands, etc. Disputes, interstate and international. Environmental flow, reduce in natural flow. The major issues related to the feasibility of the project as the estimated cost of the all India river linking project. हम ओवरऑल बात कर रहे हैं 5,60,000 करोड़. 2002 में जो मैंने आपको बताया अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ये किया गया था. फर्दर द प्रोजेक्ट में हैव नेगेटिव इकोलॉजिकल, फर्स्ट कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट ओवरबर्डन, राइट. सेकेंड, project may have negative ecological effect as may impact fisheries, flora, fauna, wetlands and may lead to possible diversion of forest land. Similarly, building of dams and reservoirs under the project will lead to displacement of people. For example, Tihri Dam, Uttarakhand में led to submersion of 72 villages. Interlinking of rivers is also likely to increase not only the interstate water disputes but also it might impact international relations, right? For example, Teesta dispute with Bangladesh. Last but not the least, MB Shah Committee. कौन सी कमेटी वाटर पे अपॉइंट करी गई थी? MB Shah Committee. MB Shah Committee pointed out that the linking of rivers it may impact natural supply of nutrients for agricultural lands by curtailing flooding of downstream areas. By inhibiting the flooding of downstream areas. Downstream areas होते हैं जो ये रिवर है जब नीचे जाएगी, अपर राइपेरियन स्टेट के लिए तो ठीक है, डाउनस्ट्रीम एरियाज हैं जब ये रिवर नीचे जाएगी वहां पे फ्लडिंग कम हो सकती है, राइट. Okay, so this was the point. Conclusion: the area needs irrigation for oil seeds, pulses and cotton and not paddy. Also the rich animal heritage of the area, the famous cattle breeds need fodder. Most households have animal wealth, many have more than one cattle. Again, the area is famous for its quality wheat and irrigated yields are high. Fruits and vegetables cultivation could also be looked at. These difficulties have been dealt with in some detail in a study commissioned by WWF
this Biksham Gujja, WWF head in India, put together a team to examine the project. तो ये स्टडी में ये फाइंडिंग्स दे रखी हैं, वहाँ से राइटर ने, एडिटोरियल के राइटर ने इसको लिया है और हमारे लिए प्रेजेंट किया है कि वीट कल्टीवेशन वाले एरिया में राइस को ज़्यादा तवज्जो देने की, राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, राइस के लिए ज़्यादा इरिगेशन का शेयर रखना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब इल कंसीव्ड है कुछ हद तक ये कीन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑलराइट, नाउ दो तीन चीज़ें जो हर रिवर वाटर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के फेवर में या अगेंस्ट आप लिख सकते हो वो ये हैं। अगेंस्ट लिखने वाले पॉइंट्स इसमें ज़्यादा हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस, कॉस्ट ओवररन्स या फिर कॉस्ट इनहिबिटिंग फैक्टर, कॉस्ट एज इनहिबिटिंग फैक्टर, देन the rehabilitation and resettlement of the people. Then India is a populous country. Obviously, in a populous country as populous as India, it is going to be a huge problem to acquire land, right? Now, mains question, the union government is pushing for Keen Betwa river interlinking. In this light, discuss the arguments for and against river interlinking project. Can you all attempt this question in 200 words? I think this is doable. 200 वर्ड्स में हम इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, कीन बेटवा ही नहीं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, राइट? नाउ द हाउसिंग बूस्ट, दिस इज एन एडिटोरियल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। मॉडल टेनेंसी एक्ट कैन अनलॉक द वैल्यू ऑफ वैकेंट हाउसेज, वैकेंट होम्स, प्रोटेक्ट हाउस ओनर्स। देखो, ऐसा एक आर्टिकल पहले भी आया था, इंडिया हैज अ शॉर्टेज ऑफ 18.78 मिलियन हाउसेज. Government is spending a lot on schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana Rural and Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. But this is a time-taking issue, right? In a populous country, again, in a populous country like India, हम लोगों को घर कैसे प्रोवाइड करें? एक तरफ आप देखते हो कि पुराने जो घर बने हुए हैं दिल्ली में भी हैं, जो 1980s में 1990s में बनाए गए थे, उन घरों में क्या है, वो दो मंजिली घर हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। अब उसकी कॉमन स्टेयर्स जाती हैं, राइट? अब उन घरों को यदि एक्वायर करके, जिन लोगों ने घर सरकार से खरीदे थे, डीडीए से खरीदे थे, डीडीए के फ्लैट्स हैं पटेल नगर में, करोल बाग में, सब जगह होते हैं, वैसे ही इंदौर में होंगे, वैसे ही आपका भोपाल में होंगे, वैसे ही आपका चंडीगढ़ में भी हैं, सब जगह हैं। नाउ इज द एरा ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स. वन ऑप्शन to tackle this problem of housing shortage in India is, one option is to redevelop the existing old cities of India. पुरानी मुंबई, पुरानी दिल्ली, राइट? तो उनमें पुणे है, नागपुर है, वहाँ पे क्या है, सरकार ने खुद ही दो मंजिली घर दे रखे हैं, 2 फ्लोर हाउसेज, ग्राउंड फ्लोर पे एक घर है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे उनकी स्टेयर्स कॉमन जाती हैं, 3-4 फ्लैट्स की स्टेयर्स कॉमन रहती हैं। उनको तोड़ के क्यों ना 5 मंजिली 6 मंजिली घर बनाए जाएं, 6 फ्लोर हाउसेज, 6 फ्लोर बिल्डिंग्स, राइट? 1 फ्लैट 1 फ्लोर टू एवरी फैमिली। ये किया जा सकता है, ऐसा किया जा रहा है अब चंडीगढ़ में या जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन में, अमृत मिशन में। दूसरा जो ऑप्शन है कि जो अपर मिडिल क्लास है, उनके पास में घर हैं, उनके पास में किराए को देने को प्रॉपर्टी है, जो एनआरआईज हैं उनके पास में फ्लैट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो उसे किराए पे नहीं देते। क्लियर? क्यों नहीं देते? क्योंकि इंडिया का जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी था कि किराएदार को ज़्यादा हक दिए गए हैं। टेनेंट्स हैव बीन गिवन मोर राइट्स देन द लैंडलॉर्ड्स। टेनेंसी कंट्रोल एक्ट्स, वी हैव सीन द एरा ऑफ टेनेंसी कंट्रोल एक्ट, जिसमें कि रेंट कंट्रोल एक्ट, जिसमें कि रेंट को कंट्रोल, रेंट पे कैपिंग लगाई गई है। अगर आप मकान मालिक को आप इससे ज़्यादा किराया नहीं ले सकते, सीलिंग रेट्स लगाए गए। उस एरा के लिए तो वो ठीक था, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी में दैट वाज वेल सूटेड, कि आप क्या करो कि एक अपर लिमिट लगा दो कि आप इससे ज़्यादा रेंट लगा ही नहीं सकते, राइट?
आप इससे ज़्यादा रेंट लगा ही नहीं सकते। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब सरकार इज डूइंग अवे विद द रेंट कंट्रोल एक्ट्स सिंस लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, so many states are being prodded by the central government, Union Ministry of Housing and Poverty Alleviation. पॉवर्टी को खत्म करने वाला और घर बनाने वाला मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, वो ये कह रहा है कि रेंट कंट्रोल एक्ट को आप एबॉलिश करो। अगर आप रेंट कंट्रोल एक्ट को एबॉलिश कर दोगे तो चीजें सुधरेंगी आगे, राइट। तो इसीलिए लाया जा रहा है मॉडल टेनेंसी एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू ओनली एज मच since it is a subject given in the state list, as we have seen that since central government created a law on the subject given in the state list in the form of agricultural reform laws, right, there is a lot of backlash. There is an allegation on the center that center is doing what? Center is encroaching upon the jurisdiction of states. Clear? India is set to double its urban population between 2018 and 2030 with estimates projecting that by 2028 New Delhi would become the most populous city on the planet. This large scale migration to urban centers in India is bound to create pressure on housing markets. अब हाउसिंग मार्केट्स में क्या करा जाए? जिन लोगों के फ्लैट हैं वो क्या करते हैं, फ्लैट का प्राइस बढ़ेगा तो उसे बेचने के लिए रखे रहते हैं, ठीक है। कौन किराएदार को दे? अनटिल एंड अनलेस कि किसी ने अपने बच्चे के लिए बड़ा होगा वो बच्चा, तब जाके फ्लैट उसके काम आएगा, उसकी शादी होगी उसको अलग कर देंगे। मिडिल क्लास मेंटालिटी, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस इसके लिए फ्लैट रखा है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी ने मुनाफाखोरी के लिए, स्पेकुलेशन के लिए फ्लैट लिया था 2015 में, 2020 में प्राइस बढ़ जाएगा, बेच देंगे। फ्लैट लिया था 2020 में, 2025 में प्राइस बढ़ जाएगा, बेच देंगे। 2023 में बढ़ जाएगा। ऐसे लोग फ्लैट किराए पे नहीं देते, राइट, क्योंकि हमारे जो टेनेंसी लॉज हैं किराएदारों की फेवर में हैं। किराएदार कब्जा करके बैठ जाएगा, क्या कर लोगे, राइट। इसीलिए उन लॉज को रिफॉर्म करने की जरूरत है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ टेक्निकल ग्रुप ऑन एस्टिमेशन ऑफ अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज, द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स करंटली फेस 96% ऑफ द टोटल हाउसिंग शॉर्टेजेस इन इंडिया। इसके पीछे भी मिडिल क्लास फिनोमिना है। मिडिल क्लास फिनोमिना क्या है कि मिडिल क्लास वाले लोग जो हैं वो तो अपना घर वर खरीद लेंगे, राइट। उनके लिए ही जो बड़ी कंपनीज हैं, डीएलएफ, कभी डीएलएफ को देखा है? प्रधानमंत्री आवास योजना के आने से पहले कभी डीएलएफ को देखा है? बोला गया कि हमने तुकाराम के लिए घर बनाया है। तुकाराम वही तुकाराम है, अपना पुराना नायक मूवी वाला, ठीक है। नायक का सीक्वल अभी तक नहीं आया, नायक 2 नहीं आई, शायद तुम्हारे और मेरे पे बन जाएगी, तब देखेंगे उसको, ठीक है, एक दिन का सीएम टाइप्स। कभी डीएलएफ ने देखा है कि गरीब कल्याण योजना के घर बनाए हो? नहीं बनाए, राइट। तो उनको पता है कि गरीब देगा 1.5 लाख रुपए, क्यों ना इसके आसपास पेड़ पौधे लगा दो, वो वही पुराना सा वही पेड़ और थोड़ा सा स्विमिंग पूल वगैरह दिखा दो, इसके 1.5 करोड़ मिल जाएंगे आपको मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास से। इसीलिए डीएलएफ वगैरह जो हैं इनको केटर करती हुई आ रही थी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वगैरह के लिए घर वर नहीं बनाए जाते। इट्स अ सैड रियलिटी बट इट इज ट्रू दैट उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वगैरह के लिए घर नहीं बनाए जाते, लोअर इनकम ग्रुप के लिए घर नहीं बनाए जाते। तो हमारी सोसाइटी एक अलग तरह के स्ट्रैटिफिकेशन से गुजर रही है। सोशल इश्यूज के लिए, इकोनॉमी के लिए भी, ठीक है। गेटोइजेशन, गेटेड कम्युनिटीज, ये कौन से हाउस हैं? एमआईजी। आप देखोगे कि एमआईजी और एचआईजी को तो साथ में फिर भी रख दिया जाएगा। हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, उसके बाद एलआईजी के फ्लैट्स आ जाएंगे। यहाँ पे गेट वेट लग रखा है, चौकीदार बैठा है, राइट, ठीक है। और यहाँ की बाउंड्री वॉल पे वो कांच की बोतल, वही बियर की बोतल जो तुम रात में पीते हो, ठीक है, उसके कांच वांच गिरा रखे हैं। और यहाँ पे है एलआईजी, लोअर इनकम ग्रुप। फिर उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग कुछ जगह बच गई, यहाँ पे एक और वॉल है। उसके बाद है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इनके घर अब बिल्कुल अलग कर दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जो घरों में सफाई करते हैं या फिर छोटा मोटा काम, टायर के पंचर की दुकान है, नाई की दुकान है, मोची का काम करते हैं, कॉबलर, बार्बर, एनीबडी, कारपेंटर, ठीक है। सरकार इन्हीं की ये जमीन थी, इन्हीं की नहीं थी, मतलब गवर्नमेंट की लैंड थी। This land was encroached upon by a slum area. Slum was evicted, slum people were evicted and they were told that within 1 year you will be given these houses.
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए घर बना दिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे ये चोरियां होने लगती हैं, ठीक है। इनकी कार रात में खड़ी थी, सुबह बैटरी गायब, मतलब समझ रहे हो, दिस इज अ रियलिटी, राइट। सेक्टर 49 चंडीगढ़ में और ये सब में। सो आई वॉज इन टू प्रॉपर्टी, तो आई कैन वेरी वेल टेल यू। फिर उसके बाद LIG वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे बैल्कनी में खड़े होके MIG वाले लोगों का स्टेटस चेक करते रहते हैं। होता है ऐसा, ठीक है, तुम लोगों ने भी देखा होगा। ऊपर वाले जो हैं थोड़ा वो स्टेटस थोड़ा ज़्यादा चेक करते रहते हैं। मिडिल इनकम वाला जो फ्लैट है वो 3 BHK होगा, ये 2 BHK होगा, ये 1 BHK है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर हार्ड वर्क, ठीक है। MIG वाले थोड़ा इधर ताड़ते रहते हैं। रियलिटी है कि नहीं? सो वी हैव इरेडिकेटेड द कास्ट सिस्टम, वी हैव ब्रॉट अबाउट द क्लास सिस्टम। घेटोज, वो जो तुम गाने सुनते हैं ना US के, मैक्सिको के, वो घेटोज वगैरह उसमें दिखाते हैं, राइट। घेटोज पे गाना भी बना हुआ है, सुनने मत बैठ जाना, पहले मुझे सुन लेना इधर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कार पार्किंग की प्रॉब्लम यहाँ पे ज्यादा रहती है LIG वालों में। गेटेड कम्युनिटीज हैं, यहाँ पे भी दीवार वार अच्छी सी कर रखी है EWS वाले लोग। प्रॉब्लम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है कुछ खास योजना। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इट इज नॉट व्हाट वी नीड इन इंडिया, इज नॉट जस्ट हाउसिंग योजना। साइलोज में, टुकड़ों में काम करना अच्छी बात है, डिपार्टमेंट सरकार के ऐसे ही काम करते हैं। हाउसिंग वाले ने हाउसिंग दे दिया, एम्प्लॉयमेंट वाला गायब है। HRD मिनिस्टर कौन है? कौन थी? स्मृति ईरानी, ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो वाला सीरियल यहाँ पे भी चलता रहता है। बात समझना जज्बात के साथ। दिक्कत क्या है कि वी नीड एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग योजना। As many of you would have seen the नायक movie because you are UPSC aspirants, वेले लोग, तो ऐसी मूवीज तो हम नहीं छोड़ते। तो उसमें क्या होता है, तुकाराम ये बोलता है अनिल कपूर को, चीफ मिनिस्टर को, कि साहब आपने घर तो खाली करा दिया, राइट, अब कुछ रोजगार का भी कर देते तो हमें ये घर किराए पे नहीं देना पड़ता। अभी मैं किराए पे भी आऊंगा। तो इनके लिए व्हाट वी नीड इज एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग योजना। यू गिव देम हाउसिंग, दे विल लीज इट आउट टू समबडी एल्स। वो किसी और को घर किराए पे दे देंगे और खुद झुग्गी झोपड़ी में आ जाएंगे। नायक मूवी का सीन है ये, मैं कुछ ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, लेकिन ये बात हमारे माननीय मंत्रियों को समझ में नहीं आती, राइट। नायक मूवी उन्होंने भी देखी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी। तो एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग, what I often suggest while dealing with this topic is we need MGNUGA, Mahatma Gandhi National Urban Guarantee Act, or what we need is Domestic Workers Conditions of Service Act। लिख लेना पॉइंट्स को, काम आएंगे तुम्हारे। डोमेस्टिक वर्कर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट, सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स हैं, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए रूल्स नहीं है। गुड़गांव में पिछले दिनों क्या हुआ था कि डोमेस्टिक वर्कर्स, ये लोगों को पहले नॉन एसेंशियल माना जाता था। पहली बात तो सरकार ने पहली बार जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन में ये कॉन्सेप्ट लाया कि इन लोगों को नॉन एसेंशियल ना माना जाए। अगर इन लोगों को आप शहर से बाहर पटक दोगे उठा के कहीं, तो पोछे वाला, झाड़ू वाला, कबाड़ी वाला गायब हो जाएगा, सिटी में न्यूजेंस क्रिएट हो जाएगा। The realization fell upon the government thanks to the godly powers। सरकार को यह समझ में आया कि इनको एसेंशियल माना जाए, दे शुड बी कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। फिर इनको, इनके बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट में 25% रिजर्वेशन दिया जाए। यहाँ पे इनका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, रायन इंटरनेशनल में, राइट, या डायन इंटरनेशनल में। दूसरा, इनका बच्चा भी वहीं पढ़ेगा। सोशल कोहेजन, राइट, सोशल इंटीग्रेशन, ताकि चेन काट, मार काट, गला काट ये सब नहीं हो। अगर इसको आप कुछ नहीं दोगे तो ये बाद में मर्डर करेगा। आज कार का टायर चोरी हुआ है, कल कुछ और चोरी हो सकता है, किसी का मर्डर हो सकता है, डेकॉइटी हो सकती है। ये चीजें समझी जा रही हैं लेट, ऑफ लेट, राइट। तो अब सरकार को क्या करना है, इन सीटू रिहैबिलिटेशन सरकार ने इस प्रोग्राम से स्टार्ट कर दिया। 2005 में JNNURM लाया गया था, उसकी फोटोकॉपी करके क्या किया गया, अमृत मिशन ला दिया गया, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन ऑफ अर्बन टाउन्स एंड सिटीज, राइट, जो भी नाम है उसका। तो ये सारी चीजें सरकार ने कर दी। अमृत मिशन इज अ फोटोकॉपी ऑफ दैट ओनली, राइट। ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि DLF, हम यहां से शुरू हुए थे, DLF वगैरह क्योंकि मिडिल क्लास को ज्यादा केटर करता है, अपर मिडिल क्लास को ज्यादा केटर करता है, इसलिए मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अपने लिए उन्होंने फ्लैट ले लिया। ये लोग क्या करते हैं, 50 लाख 60 लाख का एक फ्लैट इन्वेस्टमेंट लेके डाल देते हैं कि इंडिया की आबादी बढ़ेगी, 60 लाख वाला फ्लैट 80 लाख का हो जाएगा, रेंट पे नहीं देते। अब इस रेंट को, रेंटल जो
पोटेंशियल है हाउसिंग सेक्टर का, रेंटल वैल्यू का, उसको अनलॉक करने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट की बात करी जा रही है। मॉडल टेनेंसी एक्ट जब आ जाएगा तो द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड एज वेल एज द टेनेंट विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड। राइट्स ऑफ किसके? किराएदार के और मकान मालिक के हक दोनों। घेटोज मतलब लोग जब एक घेटोज में रहते हैं, ठीक है, यहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है जिनका नाम है सिख कम्युनिटी, यहाँ पे बुद्धिस्ट। तुम अपनी सिटी के कॉर्नर में देखते हो कि एक समुदाय के, मुस्लिम कम्युनिटी के एक लोग एक समुदाय में मिलते हैं, उसको, इस फिनोमिना को घेटोइजेशन बोलते हैं। घेटोस, GHETTOS, ठीक है। फिर एक तरफ आप देखते हो आपकी सिटी में सिर्फ सिख समुदाय के लोग रहते हैं, एक तरफ किसी और कम्युनिटी के लोग रहते हैं, पहाड़ी लोग रहते हैं, ठीक है। वो लोग आपस में रहने में महफूज फील करते हैं। अगर कोई राइट्स होंगे या कोई विक्टिमाइज करेगा तो ये बोला जाता है वो देखो मुस्लिमों का लड़का वहां से आया है। अगर कोई मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई तनाव पैदा होगा तो मुस्लिम्स एक साथ रहते हैं, हिंदूज एक साथ रहते हैं, सिख्स एक साथ रहते हैं। इसको घेटोइजेशन बोला जाता है। पहले ये घेटोइजेशन कम्युनिटी और कास्ट के बेस पे देखी जाती थी। आज ये घेटोइजेशन किसके बेसिस पे देखी जाती है? क्लास के बेसिस पे। HIG, सिर्फ जात बदल गई, जात की जगह क्या आ गई? पात आ गई। जात पात बोलते हैं ना, ठीक है, जात चली गई, अब क्या आ गया? क्लास आ गई। क्लास, HIG, MIG, LIG। अच्छा, LIG वाले हो, कौन सी फ्लैट में रहते हो? 420 नंबर में। ये सब चीजें देखने को मिलती हैं अर्बन एरियाज में, राइट। तो HIG वालों को जो है मतलब गाड़ी वाड़ी बड़ी होगी, यहाँ पे BMW वगैरह ज्यादा होंगी, यहाँ पे स्विफ्ट वगैरह ज्यादा दिख जाए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर हैविंग स्विफ्ट, नो ऑफेंसेस प्लीज, ठीक है। तो ये फिनोमिना हमारे वहां पे चलता है। अब मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या करना चाह रहा है? जैसे हम हैं कॉमर्शियल सेक्टर में, ये बहुत पहले होने लग गया। 2011-12 में एक कंपनी आई कोवर्क्स। कोवर्क्स क्या करती है? कोवर्क्स इस बात को समझती है कि बैंगलोर में बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं। मैं अब कॉमर्शियल सेक्टर में ले जा रहा हूं। कोवर्क्स में बहुत सारे, कोवर्क्स ये समझती है कि बैंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज काम करेंगी। अब कोवर्क्स इस बात को समझती है कि एक स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए रेंट देना तो मतलब समझ में आया? तो कोवर्क्स ने क्या किया? ये तो हम रेजिडेंशियल एरिया की बात कर रहे हैं ना गाइज। कोवर्क्स ने इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रॉब्लम को समझा कि इतनी सारे ऑफिसेज खाली हैं, क्योंकि जिन्होंने ऑफिस स्पेस खरीदा था रेंट पे देने के लिए, उन्होंने इस एक्सपेक्टेशन में खरीदा था कि ये 2000 स्क्वायर फीट एरिया 5 लाख रुपए रेंट पे आएगा। अब वो तो आया नहीं। 2000 स्क्वायर फीट एरिया 5 लाख पे कौन खरीदेगा? रेंट कौन देगा? नहीं देगा कोई। इसलिए कोवर्क्स ने क्या किया? सरकार से, बैंगलोर एडमिनिस्ट्रेशन से ये परमिशन ली कि हमें दिन रात इस बिल्डिंग को चलाने की परमिशन दी जाए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए, उन्होंने अच्छा खासा फर्नीचर लगा दिया, पीने का वो जो डिटॉक्स वाटर होता है उसके 2-4 कंटेनर वगैरह रख दिए, AC वेसी लगा दिए। बोले कि आप आओ ऑफिस में बैठो, आपके ऑफिस में आपके एम्प्लॉयज़ बैठेंगे, 8 एम्प्लॉयज़ आपके अलाउड हैं। उनका कोवर्क्स का कार्ड बन जाता है और वो एम्प्लॉयज़ आते हैं, अपना काम करते हैं, 8 घंटे उनको बैठना अलाउड है, ठीक है। अब टेबल्स लगा दी, एक तरफ आप देखते हो कि X कंपनी के एम्प्लॉयज़ बैठे हैं टेबल पे, एक तरफ Y कंपनी के, यानी कि कोई भी स्टार्टअप अपनी रियल एस्टेट कॉस्ट को कम कर सकता है, राइट। इसी तरह का मॉडल टेनेंसी एक्ट के अंडर रेजिडेंशियल एरियाज में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए इसी मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए कुछ कंपनीज सरकार के दरवाजे खटखटा रही हैं कि हमें ऐसा मॉडल दो कि हम ये एनेबलिंग लेजिस्लेशन आप ले आओ कि हम कमर्शियल एरिना जैसा मॉडल यहां पे ले आए कि हम सारे फ्लैट किराए पे ले लेंगे। कुछ ऐसी
NBFCs हैं जो इस काम में आना चाहती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कि वो सारे फ्लैट्स, अगर DLF ने एक प्रोजेक्ट बनाया उसमें इन्वेस्टर्स आज पैसा नहीं लगाना चाहते। क्यों नहीं लगाना चाहते? इसलिए नहीं लगाना चाहते कि भैया मैं 1.5 करोड़ का फ्लैट लूंगा, रिसेशन चल रहा है, क्या ये फ्लैट 5 साल के बाद 2 करोड़ का बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो ये जो रियल एस्टेट कंपनी आएगी, जैसे हमारी प्यारी धन्नो यानी कि धन एकेडमी टीचर्स को मोनोपोलाइज कर रही है, वैसे ये रियल एस्टेट कंपनी क्या करेगी, इस एरिया के सारे फ्लैट्स बोलेगी कि हम किराए पे लेने को तैयार हैं। इसका नाम होगा, ये है DLF रियल एस्टेट, ये होगा DLF रेंटल्स। ठीक है, सिंगापुर वगैरह में ये मॉडल पहले देखा जा चुका है। DLF रेंटल्स क्या करेगा, DLF रियल एस्टेट से आप फ्लैट लोगे, DLF रेंटल आपका फ्लैट तुरंत आपको 50,000 रुपए किराया देने लग जाएगा। हालांकि इस एरिया में किराया 20,000 है, लेकिन DLF रेंटल्स आपको ये एश्योरेंस देगा कि जैसे ही आप इस फ्लैट को बुक करोगे, 1.5 करोड़ रुपए DLF रियल एस्टेट को दोगे, सिस्टर कंसर्न DLF रेंटल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आया? ये कुछ उस तरह से है जैसे आप एक उबर के ड्राइवर को ये बोलो कि तुम वैगनआर लो, मारुति बेचारी कन्विंस करने लगी है कि वैगनआर ले ले बेटा, काम आएगी। ड्राइवर बोलता है कि पैसेंजर तो है नहीं, लॉकडाउन लग रखा है। मारुति ने मारुति कैब्स बना दिया। मारुति कैब्स ये कह रही है, एग्जाम्पल से समझना इस एग्जाम्पल को, मारुति कैब्स ये कह रही है कि तू पहले 4 लाख की कार तो ले, हमने तेरे को 10,000 रुपये महीना देने शुरू कर देने हैं। कार की वैल्यू 3.5 लाख है, 5 महीने का 50,000 रुपया उसी ड्राइवर की जेब से वसूला जा रहा है। फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ है, 50 लाख उससे पहले से वसूल लिया जा रहा है कि अगर ये फ्लैट किराए पे नहीं चढ़ा, DLF ऐसी पूरी प्रॉपर्टीज को अपने पास किराए पे ले लेगा। क्या हो जाएगा? हाउसिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी हो जाएगी। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी हो जाएगी तो रेंटल कॉस्ट बढ़ने लगेगी, राइट? रेंटल कॉस्ट जब बढ़ेगी तो DLF तब अपना मुनाफा कमाना शुरू करेगा, राइट? ये कॉमन रियल एस्टेट, मेरे पास अगर 4 फ्लैट हैं, ये मेरे लिए नहीं है, ये इन कंपनीज को मुनाफा देने के लिए है कि ये कंपनीज बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे रेंटिंग के बिजनेस में पैसा कमाना चाहती हैं। क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, कोयम्बटूर में, चेन्नई में, त्रिवेंद्रम में लोग अब घर लेने की नहीं सोचते, क्योंकि घर लेने में या तो तुम्हें IAS होना पड़ेगा, या फिर तुम कोई स्टार्टअप के ऑनर हो, बिजनेसमैन हो बहुत बड़े, ठीक है, या फिर पुश्तैनी अमीर हो, या फिर तेलगी हो, या फिर हर्षद मेहता हो, स्कैमस्टर हो, तब तो तुम कर जाओगे, या कोकेन 2 नंबर के काम करते हो, ठीक है, ट्रैफिकिंग करते हो या कुछ। घर लेना नामुमकिन हो गया है। तो अब क्या है, रेंटल में, क्योंकि इन कंपनीज को पता है, DLF वगैरह रियल एस्टेट सेक्टर कंपनीज को पता है कि लैंड प्राइसेस इतने ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हैं कि मुश्किल हो जाएगा, राइट? किसी के लिए भी घर लेना मुश्किल है। अब रेंटिंग को प्रमोट किया जा रहा है। DLF रियल एस्टेट फ्लैट बेचेगा, 1 करोड़ वाला फ्लैट 1 करोड़ 25 लाख में बेच दिया, बुर्बक बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया अब खरीदने वाले को कि तुम्हें फ्लैट खरीदते ही 50,000 रुपये रेंट मिलने लग जाएगा। 50,000 रुपये रेंट उसी के 25 लाख में से दिया जा रहा है। जब तक ये 25 लाख खत्म होंगे तब तक DLF ये सारे फ्लैट्स किराए पे ले चुका होगा, ठीक है? अब कोई किराए पे फ्लैट लेने आएगा तो उसको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्लियर? अब ये 50,000 देने वाले कहाँ से आएंगे? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहाँ है? टाइम फिश नहीं चल रही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, थैंक्स टू निर्मला। नाउ according to 2011 census data, nearly 11 million housing units were vacant in the country. This combined with a shortage of nearly 19 million units, 18.78 million जो मैं बोल रहा था, ठीक है? There are several policy bottlenecks due to which homeowners prefer to keep their homes vacant instead of renting them out. Firstly, the existence of pro-tenant rent control laws across Indian states continue to be an obstacle. These laws protect the rights of tenant while diluting the rights of homeowners. In the case of housing that was not vacant, as per National Sample Survey Organization's data, 71% households living in the rented accommodation did not have a written contract. ठीक है, जो houses किराए पे हैं उनमें से 71% लोग अग्रीमेंट नहीं करते, रेंट डीड नहीं बनवाते। दिस इनफॉर्मेलिटी कुड बी अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रो टेनेंट कैरेक्टर ऑफ द रेंट कंट्रोल लॉज। अब अगर किसी के फ्लैट पे कब्जा हो भी गया है तो पुलिस वाले को 4-5-2 लाख रुपए देंगे, जो करप्ट पुलिस वाला है, ऑनेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है, उसको 2-3 लाख रुपए देंगे और वो रात में फ़ोन करेगा कि आपका बच्चा इस स्कूल में जाता है ना,
थोड़ा अगर फ्लैट खाली नहीं हुआ तो अपने बच्चे को स्कूल भेजना कम से कम बंद कर देना। आपकी वाइफ उस ब्यूटी पार्लर जाती है ना, थोड़ा ध्यान से, राइट। इस तरह की धमकियां देके फ्लैट खाली करवा लिया जाता है। अगर रेंट एग्रीमेंट करेंगे तो कागज पे आ जाएगा कि तुकाराम ने उसको फ्लैट किराए पे दिया था, इसलिए तुकाराम परेशान कर रहा है टेनेंट को, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सोशलिस्टिक पैटर्न यहाँ पे दिखाई देता है। तो जिस तरह का रिफॉर्म हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में लाया, आईबीसी में क्या होता था, बैंकों को पावरफुल माना जाता था आईबीसी से पहले, कि बैंक साहूकार है, कर्ज देने वाला जो है, जो कर्ज ले रहा है, जिसको ईएमआई पे करनी है, वो बेचारा फंस गया है, इसीलिए पे नहीं कर रहा। इसका फायदा किसने उठाया, कैपिटलिस्ट ने। उसी तरह का यहाँ पे ये है कि जो किराएदार है वो बेचारा है, और जो मकान मालिक है वो सेठ है, धन्ना सेठ है, लैंडलॉर्ड है, ठीक है। उसके पीछे जो लैंडलॉर्ड लग गया, उस वजह से लैंडलॉर्ड के राइट्स कम हो गए। हमारी कंट्री में ये सहानुभूति वाला कल्चर है, ठीक है। तो वो चीज़ को अब यहाँ पे हम खत्म करना चाहते हैं। नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन्स, ये सारा डेटा आप देख सकते हो। यंग एजुकेटेड जॉब सीकर्स माइग्रेट टू मेट्रोपोलिस, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। दे ऑफन complain of onerous tenancy conditions and obscene sums of money as security deposit। किसी को बोला जाता है 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट कराओ, 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट कराओ, that they are asked to fork out to lease accommodation। In some cities tenants are asked to pay security deposits amounting to 11 months of rent, ठीक है। Also some house owners routinely breach tenants rights to privacy by visiting the premises unannounced for sundry repair work। ये लोग जो यूपीएससी वाले यहाँ पे दिल्ली में किराए पे रह चुके हैं, ये तुम समझ सकते हो इससे कितनी ट्रबल होती है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी ट्रबल होती है, जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए भी ट्रबल होती है, राइट। तो whimsical rent raises are another problem for the tenants, many of whom complain of being squeezed as captive customers। Certain regulatory constraints such as long and cumbersome approval process, environment clearance, lack of clarity in building bylaws and implementation of the master plan, ठीक है। कम्बरसम अप्रूवल प्रोसेस है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला बिल्डिंग को। इस वजह से क्या होता है कि तहसीलदार के ऑफिस में अब क्या है कि अनरेगुलराइज्ड कॉलोनीज, डीएलएफ या बड़ी जो डीएलएफ कंपनी है वो तो फिर भी अप्रूवल लेके प्रोजेक्ट बनाते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अब सिटी का एक ऐसा लाल डोरा बोलते हैं ना, लाल डोरा मतलब रेड लिमिट, बियॉन्ड दिस अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका परमिशन नहीं होता। उसकी परमिशन म्यूनिसिपैलिटी देती नहीं है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी अगर उसकी परमिशन दे देगी तो म्यूनिसिपैलिटी को इस एरिया में भी बिजली, पानी, सीवरेज इंश्योर करना पड़ेगा, म्यूनिसिपैलिटी देती नहीं। अब अगर आप इस एरिया में रह रहे हो किराए पे, आप अगर अपनी रेंट डीड रजिस्टर करवाना चाहते हो तहसीलदार के ऑफिस में जाके, सरकार के ऑफिस में जाके स्टैम्प पेपर पे काम करवाना चाहते हो, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री या सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ वही प्रॉपर्टी की डिटेल दर्ज हो सकती है जो लाल डोरे के अंडर है, जो कि इस रेड लिमिट के अंडर है। ये प्रॉपर्टी रेड लिमिट के बाहर है, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है, ठीक है। Certain regulatory constraints such as long and cumbersome approval process, environmental clearance, lack of clarity in building bylaws। अब ये एरिया मास्टर प्लान के अंडर नहीं आ रहा, ठीक है। Scarcity of developed and encumbrance free, encumbrance मतलब भार मुक्त जमीन। जिन लोगों के घर में कुछ प्रॉपर्टी कभी खरीदी गई है तो उसको समझेंगे। भार मुक्त मतलब इस जमीन का टाइटल बिल्कुल फ्री है, यानी कि धन्नो की बाई गुड़िया, गुड़िया की बाई बुढ़िया, मतलब जो दादी परदादी के नाम पे जो जमीन थी वो किसी ने आगे बेच दी, टाइटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वरना क्या होता है, बहन भाई क्लेम करने लगते हैं इतनी बड़ी फैमिली में कि ये प्रॉपर्टी में हमारा भी हक है। सभी वाकिफ हैं, देखो इंडिया में इन प्रॉब्लम से हर घर में ये बातें होती हैं, राइट। किसी की बुआ केस डाल देती है, किसी की, जैसे माधवराव सिंधिया के, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बेटे हैं, उनकी बुआ ने केस डाल रखा है कि इस जमीन पे मेरा भी हक है। क्लियर। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एनकम्बरेंस फ्री लैंड नहीं है हमारे यहाँ, लैंड के टाइटल्स क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, एब्सेंस ऑफ वायबल रेंटल मार्केट, इनएक्सेसिबिलिटी टू होम लोन्स बाय पुअर आर सम ऑफ द चैलेंजेस। गरीब लोगों के लिए ये चैलेंज है। ये पता क्या कहना चाह रहे हैं, अगर मेरे परदादा ने मेरे नाम पे कोई फ्लैट छोड़ा था, आज अगर मैं उसको रजिस्टर कराने जाता हूँ, मेरी इनकम है साल की 8 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आज मैं उसे रजिस्टर कराने जाऊंगा तो मेरे को स्टैम्प पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सरकारी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कितनी है, 80 लाख रुपीज।
मुझे उसका 10% स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा। मैं ये दिखा रहा हूँ कि मेरे परदादा ने ये प्रॉपर्टी मेरे दादा के नाम करी, दादा ने पापा के नाम करी, पापा ने मेरे नाम करी। ये कागज़ों में तो लिखा है, दादाजी का अंगूठा है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो मुझे स्टैम्प पेपर पे करवाना है, अपने नाम करवा के आगे किसी को बेचना है, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे 10% देना पड़ेगा, 8 लाख रुपए इस पे खर्चने पड़ेंगे मुझे। ये पॉइंट यहाँ पे ये कैप्चर कर रहा है, ठीक है। स्कैरसिटी ऑफ एनकम्बरेंस फ्री लैंड, किसी के दादा परदादा की खेतों की ज़मीन थी, उसको अगर आज स्टैम्प पेपर पे उतारना है ताकि अब सरकार के रिकॉर्ड में वो अपडेट करवा सको कि ये ज़मीन अब मेरी है, उसके लिए मुझे पैसे खर्चने पड़ेंगे। वो मैं करवा नहीं पाऊंगा अगर मैं गरीब आदमी हूँ। ये सारी चीज़ें गरीब आदमी के रास्ते में आती हैं जब वो घर खरीदना चाहता है, ठीक है। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ठीक है। देन एब्सेंस ऑफ वायबल रेंटल मार्केट। रेंटल मार्केट जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना, इस तरह की रेंटल मार्केट, जैसे आज आपको टैक्सी बुक करनी है तो वायबल मार्केट है, एजुकेटर बुक करना है तो वायबल मार्केट है, राइट। तो ऐसी वायबल मार्केट, बैंक से लोन लेना है वायबल मार्केट है, गाड़ी लेनी है अपने आप घर आ जाएंगे। अच्छा, अगर गलती से भैयाजू में एडमिशन लेना है वो भी घर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको किराए पे घर लेना है तो आपको प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पे धक्के खाने पड़ेंगे, ठीक है। क्या होना चाहिए? घर देखो .com, कार देखो .com है, घर देखो .com है नहीं, घर बेचो .com है, घर रेंट पे लो .com है नहीं है, कल्चर नहीं है, ठीक है। लोग, क्योंकि एनेबलिंग लॉ नहीं है, इसलिए लोग डरते हैं, देने वाला भी डरता है, लेने वाला भी डरता है, हिडन कॉस्ट ना हो, राइट। हिडन कॉस्ट कैसी होती है? फ्लैट किराए पे ले लिया, बाद में बोलता है कि 3,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा लिफ्ट का, जो लिफ्ट लगी है बिल्डिंग में। तुमने बोला मैंने तो फर्स्ट फ्लोर इसलिए लिया था कि 30,000 किराया दूंगा बजाय 25,000 के, बट मैं लिफ्ट यूज़ नहीं करूंगा। उसने बोला नहीं, ये तो मैंडेटरी चार्जेस हैं, राइट। ऐसा सबके साथ होता है कि ये सब जो घर किराए पे लेते हैं स्टूडेंट लोग, हमने भी ये सब फेस किया है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है? यंग एजुकेटेड जॉब सीकर्स इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, दे सफर अ लॉट। इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं, कैप्टिव कस्टमर्स आर बीइंग ट्रीटेड एज कैप्टिव्स, जैसे उनको खरीद लिया गया है, बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, जैसे राइट टू प्राइवेसी ब्रीच किया जाता है, क्लियर। Now, acknowledging these issues with the rental housing sector today, Union Cabinet recently approved the Model Tenancy Act 2021, which can significantly boost India's rental markets. इस झांसे में मत रहना, ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये एक्चुअल में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये बताया जा रहा है कि एक आम आदमी, इन्फोसिस में जॉब करने वाला मेरा वो अनुज नाम का दोस्त जो बैंगलोर में रह रहा है, जिसकी सैलरी 80,000 है, वो घर किराए पे ले लेगा, ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? ऊबर रेंटल्स की तरह, जैसे आज आप कार किराए पे ले सकते हो, क्योंकि आप अगर लोअर मिडिल क्लास हो, सपना मत लेना कार लेने का, तेल महंगा हो चुका है, आप कार किराए पे चलाओ, जूम कार चलाओ या जो भी कार आती हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप घर किराए पे लेना चाहते हो तो ये है, फर्नीचर किराए पे लेना चाहते हो तो ये है। तो अब हमारी कंट्री में क्या आ रहा है? किराएदार कल्चर, राइट। थोड़ा वो टाइम दूर नहीं है जब आप, मैं बोलना नहीं चाहता, घर में बीवी और पति के अलावा सब किराए पे होगा, राइट। क्लियर है? काफ़ी लोग थोड़ा बोलेंगे कि ज़्यादा टॉपिक खिंच गया, बट आज इसको पूरे वैसे समझा देते हैं। मैंने इसकी कोशिश करी है पूरी डायमेंशंस कवर करने की। अभी तक जो डायमेंशंस हमने कवर करी हैं वो बता देता हूँ। रीडेवलपमेंट लॉज नहीं है इंडिया में, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर रेंटल हाउसिंग नहीं है, जो कि अब प्रमोट हो जाएगा इस एनेबलिंग लेजिस्लेशन से। लैंड के टाइटल्स क्लियर नहीं है, स्टैम्प पेपर ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है, क्लियर। वो सारी चीज़ों की वजह से अब ये बड़ी कंपनीज, नाम लगाया जा रहा है मिडिल इनकम कस्टमर का कि वो अब घर किराए पे ले पाएगा, लेकिन डीएलएफ रेंटल जैसी कंपनीज वेट कर रही हैं कि कब ये ऐसा लॉ पास होगा। फीचर्स ऑफ द मॉडल टेनेंसी एक्ट, द एक्ट मैंडेट्स, तुम लोग हाजिरी लगाओ एक बार, ऐसे दिल तोड़ते हो मेरा, फटाफट हाजिरी लगाओ। कितने लोग देख रहे हो इधर? मतलब मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, मैंने कमेंट्स में नहीं देखा तो तुम्हारे कमेंट्स खत्म हो गए। फटाफट से हाजिरी लगाओ। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता कि क्वेश्चन इस पे आएगा या जो मैं बोल रहा हूँ उस पे आएगा या जो मैं नहीं बोल रहा हूँ उस पे आएगा। इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द टॉपिक आई हैव गिवन यू। कितनों को मेरा जो ये एग्जाम्पल था कोवर्क्स वाला, कितनों ने कोवर्क्स देखा है? कितनों को वो एग्जाम्पल समझ में आया? कोवर्क्स की कोई बिल्डिंग देखी है? तो कोवर्क्स क्या कर रहा है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग उठा लेता है। कोवर्क्स, एज द नेम इटसेल्फ टेल्स यू, कि वो पूरी बिल्डिंग किराए पे ले लेगा। आपको बोलेगा कि आपको 3rd फ्लोर पे ऑफिस मिल जाएगा,
इतने लोग बैठ सकते हैं इतने से इतने बजे तक। क्लियर? Now, it repeals the age-old Rent Control Act to free up properties that have been locked with negligible rental leases for decades. अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 700 रुपये किराया दिए जा रहे हैं, राइट? 700 रुपये ही वो किराया चलता जा रहा है, उनका चलता जा रहा है, साल हो गए 25, लेकिन किराया 700 ही है। The Act sets up a grievance redressal mechanism for setting off disputes within 60 days. This system comprises rent authority, rent tribunal and rent court. There is no minimum monetary limit for the cases to be entertained. चाहे रेंट 500 हो या 5 लाख हो, किसी भी नेचर का केस एंटरटेन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इन अ लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज टू सबमिट एंड रजिस्टर ऑल रेंट अग्रीमेंट्स ऑनलाइन, यानी कि तहसीलदार के ऑफिस जाने का, कचहरी जाने का कोई लॉजिक नहीं है। द एक्ट अलाउज सबलेटिंग। सबलेटिंग क्या होता है? मैंने अपने लैंडलॉर्ड से ये प्रेमिसेस किराए पे ले रखा है, ठीक है? अब कल को अगर मैं इसको किसी को आगे लेट करके जाना चाहता हूँ, किराए पे लेट करके जाना चाहता हूँ, तो मैं सबलेट कर सकता हूँ, सब लीज कर सकता हूँ, राइट? बट विद द प्रायर कॉन्सेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का कॉन्सेंट लेना जरूरी होगा। नो आर्बिट्रेरी एविक्शन ऑफ द टेनेंट बाय द लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ पब्लिक न्यूजेंस, damage of property, use of the property for illegal purposes. Security deposit should not exceed 2 months rent for residential property and 6 months rent for non-residential property. In case of a force majeure event, force majeure होता है इंसान के कंट्रोल से परे। Force majeure is beyond the control of human force. Clear? Force majeure जैसे COVID-19। अब अगर ऐसा कुछ होता है, फोर्स मेजर इवेंट होता है, द पोजेशन ऑफ द प्रेमिसेस कुड कंटिन्यू अंटिल 1 month आफ्टर द इवेंट सीजेस टू एग्जिस्ट। पोजेशन ऑफ प्रेमिसेस कुड कंटिन्यू अंटिल 1 month, ठीक है, आफ्टर द इवेंट सीजेस। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, ठीक है, 19 अप्रैल से लॉकडाउन हुआ, अप्रैल और मई में मेरे को रेंट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरे रेंट एग्रीमेंट में ये लिखा है फोर्स मेजर इवेंट, राइट? फिर भी मैं अगर 1 महीना और रेंट ना देना चाहूँ और मैं बोलूँ कि मैं 1 महीने बाद खाली कर जाऊँगा, लैंडलॉर्ड कुछ नहीं कर सकता अगर ये एक्ट पास हो जाएगा। क्लियर? फोर्स मेजर इवेंट हो गया, पोजेशन ऑफ द प्रेमिसेस विद द टेनेंट वुड कंटिन्यू इवन इफ रेंट इज नॉट बीइंग पेड, राइट? तो रिटन रेंटल रिकॉर्ड होगा। फोर्स मेजर इवेंट क्या होता है? सिक्योरिटी, नो आर्बिट्रेरी एविक्शन, ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड्स होंगे। देन रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए हमने 3 इंस्टीट्यूशन देखी, रेंट ट्राइब्यूनल, रेंट कोर्ट एंड थर्ड वन वाज रेंट अथॉरिटी। सबसे पहले रेंट अथॉरिटी, ऑनलाइन पोर्टल होगा, आपने एग्रीमेंट किया अपने लैंडलॉर्ड के साथ में, उसको अपलोड कर दिया, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कचहरी में धक्के खाने की, राइट? नाउ द एक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स एज लैंड एंड, अब देखो इसका एक और एंगल देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट बहुत ही पुअर माना जाता है, राइट? When this bill would be passed, insofar as commercial establishments are concerned, like co-works, DLF rentals, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इस बिल का पास होना एक पॉजिटिव पॉइंट गिना जाएगा, राइट? So the act is not binding on the states as land and urban development remains state subject. The point that I told you in the very beginning. Like in the cases with, अब हम क्या बात कर रहे हैं? Challenges की बात कर रहे हैं. Good morning. Now real estate regulatory authority. The fear is that states may choose not to follow the guidelines, diluting the essence of Model Act. Multiplicity of laws to govern tenancy as there is already Rent Control Act 1948 to govern tenancy laws. It heavily penalizes the tenant if he does not vacate the house in prescribed rent period, even during emergency situation. This clause lacks clarity. Law envisages a 3-tier grievance redressal system with a district level judge in charge of dispute resolution. This means that states will have to invest time, resources and efforts to set up these institutions and also spare human resources from an already burdened lower judicial system. ठीक है, केसेस जो हैं चलते रहते हैं। आजकल आलम ये हो गया, मैं तुम्हें बता देता हूँ, हैविंग स्पेंट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन प्रॉपर्टी, अगर किसी को फ्लैट किराए पे भी देना होता है ना, तो वो पता है क्या करता है? सीनियर सिटीजन, मतलब अगर मेरे को कोई फ्लैट किराए पे देना है तो मैं पहले अपने पेरेंट्स के नाम करा दूंगा अगर वो सीनियर सिटीजन है तो।
अब लड़ाई किनके बीच में हो गई, अगर कानून में मैटर जाएगा, मैंने प्रॉपर्टी लेके किराए पे दे रखी है, तो मेरे किराएदार का वकील ये बोलेगा कि देखो जतिन वर्मा की इनकम इतनी है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है मिलॉर्ड, लेकिन मेरा जो मुवक्किल है, मेरा जो क्लाइंट है, वो बेचारा बेघर है, बेरोजगार है, उसके ऊपर तरस खा के 6 महीने और रहने दिया जाए, 1 साल और रहने दिया जाए। मेरे मुवक्किल ने इतने साल इतने महीने किराया दिया है, तो अब उसको कुछ टाइम रियायत दी जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक सीनियर सिटीजन आ जाए, वहां का लॉयर बोलेगा कि मेरा मुवक्किल गरीब है, बेघर है, बेरोजगार है, अगर इसको घर से निकाल देंगे तो ये स्ट्रीट पे आ जाएगा। दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन ये कहेगा, अगर ये किराया नहीं देगा मिलॉर्ड, तो मैं दवाई कहाँ से लूंगा, मैं सीनियर सिटीजन हूं, मेरे बच्चे मुझे नहीं पहचानते, राइट, मेरे बच्चे मुझे कुछ नहीं देते, तो मेरे को बचाओ। तो मिलॉर्ड ये बोलेगा सीनियर सिटीजन के हितों का ध्यान रखते हुए किराएदार को तुरंत खाली करने को बोला जाए, 1 महीने के अंदर घर खाली हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, ऐसी लीगल दावपेच से बचने के लिए सीनियर सिटीजन के नाम पे लीज डीड बनवाते हैं, राइट, ताकि वो बचे रहें। क्लियर? The act facilitates another long pending demand of experts for special fast track courts to settle rental disputes in India। मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ। कोर्ट क्या होता है, जज बिना कोर्ट क्या है, गलियारा, कमरा, है ना, कोठा, जो भी कह लो, मतलब जज के बिना कोर्ट क्या है, कुछ नहीं है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट करे जा रहे, भैया जज कहाँ हैं? हर कोर्ट ही अगर फास्ट ट्रैक हो गया, ये तो फिर वही बात हो गया, सारी कम्युनिटीज़ को आपने अल्टीमेटली रिजर्व्ड कैटेगरी डाल दिया, राइट, उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, पहले जजेस तो लगा लो। इन इंडिया एन एवरेज कमर्शियल सिविल सूट वाज डिस्पोज्ड ऑफ इन 1450 days in a district court as per World Bank's Doing Business report in 2018. To fast track the disposal of rental disputes, Model Tenancy Act 2021 envisions improved contract enforcement through a 3-tier dispute redressal mechanism: rent authority, rent court, rent tribunal, rent court। ठीक है। However, the protracted litigation remains a risk. While the adjudicatory bodies at the 2nd and 3rd tier of appeal are required to dispose of cases within a 60 days timeline, no such timeline is placed on the 1st tier, that is the rent authority. Lacuna in the bill. One of the lacunae is this: the Model Tenancy Act is expected to provide a fillip to private participation। आ गया वो पॉइंट DLF रेंटल्स वाला, ठीक है। With the formalization of rental housing markets in India, with a legal framework in place, the private sector can enter into affordable rental housing market through models like build to rent and rent to own। ये मॉडल्स हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा था, ठीक है। दिस बिल इज अ कोवर्ट अप्रोच ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंट्रूड इनटू एन एरिना मेंट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें से पैसा अच्छा बना सकती हैं। DLF बोलेगा कि आप ये लॉ पास करो, लार्सन एंड टोब्रो बोलेगा कि आप ये लॉ पास करो, स्टेट गवर्नमेंट को हम तुम्हें 400-500 करोड़ रुपया देते हैं। स्टेट बोलेगी 5000 करोड़ दो, हम ये रेंट कंट्रोल एक्ट के बजाय रेंट फैसिलिटेशन एक्ट ले आएंगे, रेंट को फैसिलिटेट करने वाला। DLF बिल्डिंग बनाएगा, खरीदार को बोलेगा कि ये बिल्डिंग खरीद लो, खरीदार बोलेगा मैं क्यों खरीदूं, ना तो यहाँ पे सांप है, ना ही कोई चोर है, ना तो जानवर भी नहीं आते, राइट। वो बोलेगा नहीं आएंगे, वो बोलेगा कैसे आएंगे, DLF बोलेगा कि DLF रियल एस्टेट, DLF रेंटल्स के जरिए आपको ये एश्योरेंस देता है कि जैसे ही आप ये फ्लैट खरीदेंगे उसके 1 महीने के बाद आपका रेंट चालू हो जाएगा। उसने बोला फ्लैट की कीमत कितनी, बोला 1 करोड़, बोला 1.5 करोड़। DLF ने बोला, DLF रियल एस्टेट के एजेंट ने बोला सर 1.5 करोड़। तो उसने बोला पहले तो ये 1 करोड़ का था। तो DLF के एजेंट ने बोला सर आपस की बात है, आप भी समझ रहे हो कि हम 50,000 रुपये महीना आपको रेंट एश्योर भी तो कर रहे हैं ना, तो 50 लाख आपसे ही तो लेंगे ना सर, अपनी जेब से थोड़ी देंगे। 1 करोड़ का फ्लैट 1 करोड़ 25 लाख का कर दिया। 25 लाख जो आपसे एडवांस लिए हैं वही तो आपको किस्तों में बीमा तो कर रहे हैं आपके रेंट का। दिस इज एन इंश्योरेंस दैट वी आर डूइंग फ्रॉम योर मनी ओनली सर, प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब समझ में आया? तो ये क्या है, ये कंपनीज को, क्योंकि कंपनीज के फ्लैट बिक नहीं रहे, बिल्ड टू रेंट, रेंट टू ओन, राइट। रेंट टू ओन प्लान क्या है मैं ये भी बता देता हूं, कभी कभी ऐसी टर्म्स पूछी जा सकती हैं। जब तुम एक बाइक खरीदते हो तो उसका एक एग्रीमेंट होता है, उसको बोला जाता है हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट, ठीक है। हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट में ये लिखा जाता है कि ये बाइक का जो ओनर है HDFC बैंक है,
HDFC बैंक ने आपको ये बाइक रेंट पे दे रखी है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो तब तक वो रेंट चलता रहेगा। अगर आप कोई कार खरीदते हो उसमें भी ऐसा होता है, जब तक वो रेंट चलता रहेगा, वो आप जो EMI पे कर रहे हो ना उसकी 15,000 रुपये पर मंथ, वो उसकी EMI नहीं है, आप उसका किराया दे रहे हो। अगर आपने बीच में किराया देना, EMI देना बंद कर दिया तो वो बैंक आपकी कार उठाने आ जाएगा, ठीक है। योर कार विल बी पिक्ड अप। आप कोर्ट में जाओगे कि बैंक मेरी कार ले गया, बैंक में लिखा है उसमें कि हायर परचेज अग्रीमेंट है, हायर, आप उनकी गाड़ी को हायर कर रहे हो। खोल के देखना अगर पापा की कार की RC कुछ पड़ा हो, हायर परचेज, अंटिल यू डू द फुल पेमेंट यू आर जस्ट हायरिंग द व्हीकल, हायर परचेज अग्रीमेंट। वंस यू वुड हैव डन द कंप्लीट पेमेंट, तब HDFC का नाम उस RC से हटा दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से हटा दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से हाउसिंग सेक्टर में क्या किया जा रहा है, आप ये घर किराए पे लो, अगर आप इस घर में 5 साल तक रहते हो, ठीक है, अगर आपको सिर्फ किराए पे लेना है तो आप 50,000 रुपये महीना किराया देते रहो। अगर आपको ये घर खरीदना है तो आप 50,000 रुपये किराया तो दे ही रहे हो ना सर, तो आप क्या करो 50,000 और दे दो, 1 लाख रुपए महीना आप देते रहो 25 साल तक के लिए, ठीक है। अगर आपकी नौकरी चली गई सर, कोई बात नहीं, आप 50,000 रुपये किराया दे रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर आपकी नौकरी रहती है, अगर आपकी नौकरी 25 साल तक रह जाती है, आप अच्छे से रिटायर होते हो, ठीक है, अनसर्टेन एरा है जॉब्स का ये सब, तो हम 25 साल तक आपसे ये पैसे 1 लाख रुपए वसूलते रहेंगे। कितने कितने महीने हो गए, 250 महीने, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। 300 महीने तक आप 1 लाख रुपए पे कर रहे हो। कितना पे कर चुके हो, फ्लैट आपका। आपको ये दिलासा दिया जाएगा कि आप घर खरीद भी रहे हो। अगर बीच में आपकी नौकरी चली गई तो जो आपने 50,000 रुपये दिए हैं एक्स्ट्रा हर महीने किराए के साथ EMI, वो एडजस्ट हो जाएगी। रेंट टू ओन, हायर टू परचेज, हायर परचेज अग्रीमेंट, रेंट ओनिंग अग्रीमेंट, ठीक है। इस तरह के अग्रीमेंट्स वगैरह बनाए जाएंगे कि जैसे अब किसी को ये लगता है कि यार मैं घर किराए पे ले रहा हूँ, इतने में तो मैं खरीद ही लूँ, लेकिन कोई ऐसा प्लान हो कि अगर मेरी नौकरी कल को चली जाती है तो मैं कैसे इस निजात से निकलूँगा। तो ये 50,000 रुपये आपकी सेविंग्स के वे में डिपॉजिट हो जाएंगे। आप जब अच्छी नौकरी में थे तो आपने 50,000 रुपये किराए वाला घर ले रखा था, जब आपकी नौकरी खत्म हो गई तो आप ये 6 लाख रुपए या 8 लाख रुपए जो आपके जुड़े होंगे, डिपॉजिट हुए होंगे कंपनी के पास में, वो रिफंड हो जाएंगे। क्लियर। कंपनी की भी चांदी, कंपनी का ये फ्लैट वैसे 20,000 रुपये किराए पे चढ़ता था, लेकिन इस कॉम्बो डील के चलते ये फ्लैट 50,000 रुपये किराए में चढ़ जाएगा। समझ में आया रेंट टू ओन का मतलब। इसी तरह से ये बाकी की सारी ग्लॉसरी वगैरह इसमें है। कहाँ गया वो पॉइंट। So, we'll cover another editorial today. Clear है सबको। एडजुडिकेटरी बॉडीज ये हो गया, रेंट टू ओन, बिल्ड टू रेंट। अब आप अगर घर खरीदने वाले हो, आप ये बोलोगे कि भैया मैं घर क्यों बनाऊं, DLF का ये फ्लैट क्यों खरीदूं, तो DLF आपको ये सपना दिखा रही है कि सर आप घर खरीद रहे हो, जैसे ही आप घर खरीद रहे हो आपका फ्लैट, आपका घर आपको दूध देना शुरू हो जाएगा, रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर, जो मैं पहले समझा चुका हूँ। नाउ this was all. While the Model Tenancy Act 2021 provides a promising framework for tenancy agreements in future, past rental agreements under the state's respective rent control act will continue. The meager rents that homeowners are allowed to charge under the rent control laws are the reason behind the large number of dilapidated housing units and chawls, such as in case of Mumbai. जो चौल जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जिसने किराए पे दी थी, वो उसको रिपेयर कराने नहीं आता था। राजपाल यादव का भी जो ओनर था वो रिपेयर कराने नहीं आता था, ठीक है। क्यों नहीं आता था, क्योंकि ये लोग 2,500-3,000 रुपये किराया दे रहे थे, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड को लगता था कि इतना तो किराया नहीं है जितना कि रिपेयर मेंटेनेंस में लग जाएंगे। तो अगर बिल्डिंग की मरम्मत टाइम टू टाइम, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल होता रहता तो बिल्डिंग गिरती नहीं। बिल्डिंग डायलैपिडेटेड होती गई, लैंडलॉर्ड का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो रह रहा है उसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक अक्षय कुमार और अक्षय कुमार नहीं, आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की एक मूवी है ना, तो उसमें भी अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई थी ना जिसमें वो अमिताभ बच्चन एक हवेली का ओनर होता है, राइट, किराया वो बढ़ाता ही नहीं है आयुष्मान खुराना, और वो रहता है हवेली में। देखी होगी तुम लोग भी कलाकार हो। ड्यू टू लो रेंट्स द होम ओनर डज नॉट हैव एन इंसेंटिव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर रेंटल यूनिट्स। लो क्वालिटी ऑफ दीज यूनिट्स इज अ मेजर थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। बर्डन आ जाता है अल्टीमेटली, जब वो बिल्डिंग गिर जाती है सरकार के ऊपर ब्लेम आ जाता है। दिस पॉइंट्स टू
the need for a separate mechanism beyond Model Tenancy Act that ensures the provision of safe and good quality rental units for tenants while ensuring a fair economic return for the homeowners. So this is the question here. Clear? गुलाबो सिताबो, वेरी नाइस. देखा, पता था मुझे एक तो होंगे ही. क्लियर? तो इसको कंक्लूड करें आज के लिए. एक दो एडिटोरियल्स हैं जो कि अच्छे हैं. द बिगिनिंग्स ऑफ अल्कोहल प्रॉब्लम. अब ऐसा मौसम हो, अल्कोहल हम डिस्कस करें चाय के टाइम पे तो थोड़ा अच्छा नहीं है. इसको किसी और दिन में इसको कंटिन्यू करता हूँ. राइट नाउ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टुडे वी हैव dwelt upon this topic. We have covered this topic in a very holistic manner. I would want some of you to at least share the summary. Okay. Akash, can you just ping me on 8882932361? Can you just ping the team on this number 61? What about the current affairs test? We will be having a test in a day or two. Current affairs का test आज कल में हो जाएगा. I'll just ask the team. Okay. Thank you guys. Bye bye.